Welcome back, friends. In the last class we saw what is an AP. We saw the first term A. We saw D, the common difference, correct? Now in today's class we will see formula Tn equal to A plus n minus 1 D. Now what is this formula? This formula is for finding the nth term of an AP. तुम लोग बोलेगी कि सर फॉर्मूला की क्या जरूरत है, हम लोग तो कर रहे थे लास्ट क्लास में. क्या कर रहे थे हम लोग? देखो, सपोज यू गिवन एन एपी है ना, क्या दिया तुमको एपी में 7, 9, 11 ऐसे एपी दिया हुआ है. तुमको बोला कि ओके दिस इज T1, दिस इज T2, दिस इज T3, फाइंड आउट T5. यू आर इजीली एबल टू डू. क्या करोगे? इसमें 2 का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है, 4 ऐड कर दोगे डायरेक्टली, करेक्ट? सो यू ऐड 4 एंड यू टेल मी दैट T5 इज 15. सर कितना इजी, हम लोग कर सकते, हमको फॉर्मूले की जरूरत नहीं है. बट इफ आई टेल यू टू फाइंड आउट द 121st टर्म और इफ आई टेल यू टू फाइंड आउट द 700th टर्म, तो थोड़ा टफ जाएगा. बल्कि कि सर क्या मतलब बहुत टफ है. तो बेटर वी हैव अ फॉर्मूला फ्रॉम विच वी कैन फाइंड आउट द 7th टर्म, 8th टर्म, 20th टर्म, 200th टर्म. जो टर्म चाहिए हम लोग फाइंड आउट कर सकते. ओके, सो वी हैव अ फॉर्मूला फॉर दैट. लेट्स मूव टू द exercise. We'll be using this formula in the whole exercise. So the first 2-3 questions, first I guess, okay, the first question जो है very easy, fill in the blanks, you have to do it on your own. Second question करेंगे. क्या दिया है? -12, -5, 2, 9, 16, 2, 9, 16 and so on. So in that question they are saying decide whether the following sequence is an AP. So how will you decide that it is an AP? We've done it in the last class. Decide करने का काम हम लोग ने last class में किया है. कैसे decide करेंगे? This minus this, T2 minus T1, T3 minus T2, T4 minus T3 and so on. We'll go on doing. सब अगर हमको common difference same आता है then the given sequence is an AP, correct? तो वो हम लोग कर ही लेंगे. So A is equal to what? -12 and you know D is equal to what? 7. कैसे मिला रे भाई? देखो, T2 minus T1 that is -5 minus -12 that is -5 plus 12 that is 7. तो अपने को D मिल गया. D is equal to 7. Now you have formula Tn equal to A plus n minus 1 D. करेक्ट. उन्होंने क्या पूछा है? T20. सो इन T20 A -12 प्लस 20 minus 1 into D 7 is equal to -12 plus 19 into 7 that is -12 plus 133 that is 121. Therefore the 20th term is 121. Okay, किसी को कोई डाउट? आगे बढ़ेंगे. I hope everybody has understood. फिर से बता रहा हूँ. This is given to you. You can find out A, you can find out D. A मिला, D मिला. देखो मैं क्यों इतना अच्छे से बता रहा हूँ, क्योंकि आगे के 2-3 क्वेश्चन होमवर्क को देने वाले हो, आपको खुद से करने हैं. You have to do it on your own. A is given to you, D is given to you. So you have the formula Tn equal to A plus n minus 1D. Whatever the value of n you can find out, universal formula. You can use it everywhere. So n का value हमने लिया 20/20 because we have to find the 20th term. ठीक है? So n is equal to 20 लिया, A लिया -12, n again 20. Solve किया, you got the answer. Okay? Let's move to the next question. Next question, if you see question number 3, same like this thing. So question 3, 4, 5 you have to do on your own. बहुत easy है, आपको खुद से करने हैं. Let's move to question number 6. Find how many 3-digit natural numbers are divisible by 5. How many? I am writing the question. How many 3-digit numbers are divisible by 5?
3-digit natural numbers. How many 3-digit natural numbers are divisible by 5? So we have to find out how many 3-digit natural numbers are divisible by 5. ठीक है, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को डरेंगे नहीं. Each and every word in the question is important. So read each and every word in the question properly and start solving. So what we have to find out, how many 3-digit natural numbers. Natural numbers means what? We will be dealing only with positive numbers. ठीक है, and integers. So positive integers, correct? So 3-digit natural numbers divisible by 5. So which is the first 3-digit natural number divisible by 5? 100, correct? Which will be the next one? 105. Which will be the next one? 110. ऐसा ये जाता जाएगा जाता जाएगा जाता जाएगा. And what will be the last term? The last term will be 995. क्यों? क्योंकि अगला आएगा ना 1000 जो हमको नहीं लेना है क्योंकि वो 4 डिजिट है, करेक्ट? So these are all the 3-digit natural numbers which are divisible by 5, correct? मतलब ये क्या है? T1 है हमारा, T2 है, T3 है, इसके बाद T4 आएगा, है ना? 115, T5 आएगा 120. It will go on. And ये कितना टर्म है अपने को फाइंड आउट करना है. मीन्स दिस इज योर Tn लास्ट टर्म. वी हैव टू फाइंड आउट कि ये एग्जैक्टली कितना टर्म है. ओके, तो इन दिस केस वी डोंट हैव टू फाइंड आउट Tn. Tn इज गिवन टू अस. देखो Tn हमको दिया हुआ है 995, हमको n निकालना है, ठीक है? देखो इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि वी हैव टू फाइंड आउट वेदर वी हैव टू फाइंड आउट Tn और वेदर वी हैव टू फाइंड आउट n. But you should not get confused. देखो T1, T2, T3 is given to you. This what is given to you, or whatever we have found out 995. This is a term, and we have to find out that how much term it is. मतलब कितना term है. For example, this is the first, second, third. Okay? तो हमको इस केस में we have to find out n. Okay? So let's see. Formula लिखेंगे Tn. Okay, before that A is equal to पता है हमको 100, B is equal to पता है हमको 5, करेक्ट? देखो ना ये माइनस ये, करेक्ट? सो विल राइट द फॉर्मूला Tn इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 D. नाउ इन दिस केस हमको n निकालना है, करेक्ट? सो Tn इज नोन टू अस, दिस होल थिंग इज नोन टू अस. कितना है? 995. सो 995 इज इक्वल टू A 100 प्लस n माहिती नहीं, ऐसे रखेंगे माइनस 1 D कितना 5. सो 995 इज इक्वल टू 100 प्लस 5n माइनस 5. सो 995 इज इक्वल टू 95 प्लस 5n, करेक्ट? 100 माइनस 5 95. 95 इधर आएगा, क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा. ये क्या हो जाएगा? 900 अपॉन 5 इज इक्वल टू n, करेक्ट? सो n इज इक्वल टू, ये बेसिक अलजेब्रा सबको आता है ना भाई. अगर किसी को इसमें डाउट है, छोटा मोटा डाउट है जो तुम लोगों ने 7th 8th में किया है, आई कैंट एक्सप्लेन एवरीथिंग ऑन द बोर्ड. प्लीज कॉल मी पर्सनली एंड आई विल हेल्प यू विद एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग, वॉट एवर डाउट्स यू आर हैविंग. ओके, सो यू गेट 900 अपॉन 5, दैट इज 5 1s are 5, remaining 4, 8s are 0. n is equal to 180. मीन्स ये कितना टर्म है? दिस इज T180, करेक्ट? मतलब ऐसा 1 2 3 4 जाते जाते 995 अपने को जब आएगा, that time it will be T180. means there are 180 terms which are divisible, 180 3-digit terms which are divisible by 5. simple. तो फाइनल आंसर लिखेंगे there are 180 terms in 3-digit natural numbers which are divisible by 5. ओके, दिस क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, बोर्ड एग्जाम को आने के चांसेस है. ऐसे टाइप का क्वेश्चन इग्नोर नहीं करेंगे. फिर से एक बार सिखाता हूं मैं. सी दिस इज गिवन टू यू 100 3-digit नेचुरल नंबर्स. सो 3 डिजिट है, सो 100 से शुरू हो रहा है. नेचुरल नंबर्स है तो सिर्फ पॉजिटिव और इंटीजर्स ही लेंगे. एंड डिविजिबल बाय 5, करेक्ट? So therefore we have 100 105. This is our AP. पहले AP लिख के लेंगे. फिर ये क्या है? T1 है, T2 है, T3. ये क्या है? ये एक टर्म है. This is a term.
So it is Tn, but we don't know कि ये कितवा term है. So we write it as Tn and we have to find out the n. Tn is given to you, n is given, a is given, b is given. Formula put करेंगे, solve करेंगे, you will get n. तो बोलेंगे these many numbers, five digit numbers are divisible. Okay, let's move to the next question. Let's move to the next question. नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है, बट वी शैल बी एबल टू सॉल्व इट. देखो क्या बोल रहे हो. द 11th टर्म एंड 21st टर्म, द 11th टर्म एंड द 21st टर्म of an APR 16 and 29, means the 11th term is 16 and this 21st term is 29. ठीक है. Then find the 41st term of that AP. पूछा क्या उन्होंने, T41 we have to find out. ठीक है. I'm repeating the question again. See, question दिया है in wordings, we have to write it in technical terms. The 11th term is 16, the 21st term is 29. Find the 41st term. This is what they have told us. Correct? So, कैसे करेंगे? देखो, formula पता है हमको, Tn equal to a plus n minus 1 d, isn't it? Now, T11 will be what? A plus 11 minus 1 D. Therefore T, लेकिन T11 तो पता है हमको क्या है, 16. So 16 is A plus 10D. तो इसको तो जरा अच्छे से लिखेंगे, A plus 10D, A plus 10D is equal to 16. Equation 1. Similarly, इस फॉर्मूला में अभी फिर से हम लोग n इज इक्वल टू क्या डालेंगे, 21. तो आएगा T21 इज इक्वल टू व्हाट, A plus 21 minus 1D. Therefore T21 is how much, 29. A plus 20D. Therefore A plus 20D is equal to 29. बन गया अपना इक्वेशन नंबर 2. Now we have to solve these two simultaneously. In the first chapter we learned solving simultaneous equation. क्या करना है, a minus a तो करना है subtracting equation 1 from equation 2. क्या मिलेगा अपने को, a plus 20d is equal to 29, a plus 10d is equal to 16. सॉल्व करो, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, करेक्ट, फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. ये माइनस हो रहा है, माइनस हो रहा है, यहाँ पे भी माइनस हो रहा है, करेक्ट. सो देयरफॉर a माइनस ये चला गया, इधर क्या रह गया, 10d is equal to 30. देयरफॉर यू गॉट d is equal to 13/10. ठीक है. अभी कुछ लोग क्या करते हैं, बहुत उनका होशियारी दिखाने को जाते हैं एग्जामिनर को. क्या होशियारी दिखाते हैं, हमको डेसिमल में करने को आता है, इसको 1.3 करेंगे. जरूरत नहीं है, अगर जरूरत है तो करेंगे, देखेंगे. ओके, यू कैन लीव सम स्पेस मे बी, बट देन अनलेस एंड अनटिल इट इज रिक्वायर्ड डोंट कन्वर्ट. ठीक है. तो डी मिला अपने को कितना, 13/10. नाउ व्हाट डू वी वांट, T41, करेक्ट. तो Tn फिर से फॉर्मूला लिख दिया, a plus n minus 1 d. We want T41 will be a. Okay, before we do this, ये d पहले इसमें किसमें तो डाल के फाइंड आउट कर लेंगे. सो सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन 1. क्या मिलेगा तुम लोगों को, a plus 10. Okay, we'll fall short of place. a plus 10, d क्या है,
13/10 is equal to 16. 10 cut, a plus 13 is 16. So a is equal to 3. a मिल गया. अभी लिखो फॉर्मूला. ठीक है, अभी लिखो. तुम्हारे पास d आ गया, तुम्हारे पास a आ गया. अभी तुम लोग T41 निकाल सकते हो इजीली. सो T41 फॉर्मूला लिख देंगे एक बार. Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d. सो T41 विल बी 3 प्लस, यहाँ पे हमको n पता है कितना, 41 माइनस 1 d कितना है 13/10. सो T41 इज इक्वल टू 3 प्लस 40 इंटू 13/10. ये कट हो गया, 1 जार 4 जार. सो T41 इज इक्वल टू 3 प्लस 13 4 जार 52, दैट इज 55. सो T41 तुमको मिल गया 55. Therefore 41th term, so 41th term of the given AP is 55. हम लोग आंसर लिखेंगे. ओके, आई होप यू अंडरस्टूड. देखो ऐसे टाइप के क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है. देखो तुमको T11 दिया है, T21 दिया है, करेक्ट. राइट द फॉर्मूला. T11 वैल्यू पुट करो, तुमको एक इक्वेशन मिलेगा. अगेन T21 वैल्यू पुट करो, तुमको और एक इक्वेशन मिलेगा. इसको साइमल्टेनियसली वी विल सॉल्व. आफ्टर सॉल्विंग दिस साइमल्टेनियसली व्हाट विल हैपन, ये आ गया इधर सब कुछ सॉल्व किया, हमको d का वैल्यू मिल गया. अभी d, लेकिन हमको इसमें पुट करने के लिए a का वैल्यू चाहिए, करेक्ट. हमको सॉल्व करते वक्त ही समझ में आया a का वैल्यू नहीं है. a का वैल्यू हाउ विल वी फाइंड आउट, d वी विल पुट हियर. यू कैन पुट इट इन दिस इक्वेशन आल्सो इफ यू वांट. किधर भी पुट करो सेम ही आंसर मिलेगा. सो यू पुट दिस d हियर एंड यू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ a. आफ्टर गेटिंग a इसमें पुट कर दो, हो गया काम. समझ में आया. ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 8. रीड द क्वेश्चन केयरफुली. So in question number 8, what are they saying? 11 8 5 2. 11 8 5 2. In this AP, which term is number -151? ठीक है. So in this AP somewhere it is 151, -151. Okay. So this is given to you, and we know that this is T1, we know that this is T2, we know that this is T3. ये क्या है T4, ये क्या है T, लेकिन कितवा अपने को मालूम नहीं. That is what the question is, कि which term, see which term is number -151. So ये जो -151 है, ये exactly कितवा term है. जैसे ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है, थर्ड है, फोर्थ है. हाउ मच टर्म इट इज, मतलब वी डोंट नो, मतलब हम लोग इसको क्या ले लेंगे, Tn ले लेंगे. ओके, एंड व्हाट डू वी हैव टू एग्जैक्टली फाइंड आउट, वी हैव टू फाइंड आउट n. ओके, सो नाउ a तो हमको पता है 11, d क्या होगा T2 minus T1, that is 8 minus 11, that is -3. तो ये d मिल गया अपने को -3, a भी मिल गया 11. नाउ फॉर्मूला लिखेंगे Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d. देयरफॉर Tn क्या है अपना इन दिस केस -151 इज इक्वल टू a 11 प्लस n मालूम है, कह रहे नहीं वही तो ढूंढने, तो वैसे रखेंगे इसको -1 d इज हाउ मच -3. ओके, पुटिंग दिस ब्रैकेट इज वेरी इंपॉर्टेंट. कुछ बच्चे क्या करते हैं n-1 ऐसे लिखते, गलत बात है. ओके, दिस मीन्स दैट इट्स जस्ट लाइक दिस. ओके, इसका मतलब ये बनता है और इसका मतलब क्या, ये पूरा मल्टीप्लाई होता है. ओके, सो रिमेंबर दिस इज रॉन्ग, ऐसा नहीं लिखना है गलती से भी. इफ यू राइट इट इन द टेस्ट, द होल क्वेश्चन विल बी गिवन टू यू रॉन्ग. ओके, इवन इन द बोर्ड एग्जाम and in the school especially where they are looking at how they can cut your marks, so be careful. So now this is given to you
सॉल्व करें हम लोग, -151 इक्वल टू 11 प्लस, अभी केयरफुली करेंगे, -3 इंटू एन, -3n, -3 इंटू +1 +3, सॉरी -3 इंटू -1 +3, करेक्ट. सो यू गेट -151 इज इक्वल टू, ये क्या 14 -3n, करेक्ट. 14 इधर आएगा, -151 -14 इज इक्वल टू -3n. So you get -165 is equal to -3n. So माइनस माइनस चला गया, 165/3 is equal to n. तो ये क्या आ गया, 3 5 are 15, रह गया 1, फिर से 5 is equal to n, therefore n is equal to 55. म्हणजेच काय की -151 is the 55th term of the given AP. सिंपल. क्या -151 n मिल गया ना रे अपने को 55. म्हणजेच काय, ये क्या है, ये क्या है, T55 है. वही तो ढूंढ रहे थे हम लोग कि कितना टर्म है, विच टर्म इज इट. सो इट इज द 55th टर्म ऑफ द गिवन AP. ओके, नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 9. So what does question number 9 say? In natural numbers from 10 to 250, how many are divisible by 4? Okay, so they are talking from 10 to 250. From 10 to 250, how many numbers are there which are divisible by 4? That is what we have to find out. Okay, तो पहले हम लोग AP बना लेंगे, ठीक है. सो which will be the first term? The first term 10 तो नहीं, क्योंकि 10 नहीं divisible 4 से, तो first term will be what, 12. The next term will be what, 16. The next term will be what, 20, and so on so on so on. 250 है क्या, उसमें आता है कि 250 is 250 divisible? सोचो, 250 नहीं, divisibility टेस्ट क्या है 4 की. The last 2 digits should be divisible by 4, correct? That is the divisibility test for 4. तो 50 जाता है कि 4 के टेबल में नहीं, तो 250 will not be divisible. तो उसके पहला कौन सा, 249, वो भी नहीं, 248, हाँ वो है. So 248 will be the last number between 10 and 250 which will be divisible, correct? अभी फिर से देखो, उन्होंने पूछा क्या है, how many numbers, मतलब you have to find out how many numbers are these all together, correct? उसमें ये क्या है तुम्हारे T1 है, ये T2, ये T3 और ये T कितवा मालूम नहीं, मतलब ये Tn. And what do we have to find out? n, just like the last question we did, correct? So therefore formula लिखेंगे a plus n minus 1 d. Now here a is equal to what, 12, d is equal to what, 4, correct? So therefore Tn अपना है 248, so 248 equal to 12 plus n minus 1, n माहिती नहीं, और d4, correct? You solve this whole thing and you will get n is equal to 60. So therefore there are 60 terms between 10 and 250. There are 60 terms between 10 and 250 which are divisible by 4. ओके, समझ में आया? ये तुम लोग अभी खुद से सॉल्व कर सकते हो. लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 10. इन द AP 70th, एकदम अच्छा क्वेश्चन, बच्चे जनरली भूल जाते हैं ये क्वेश्चन कैसा करना है. ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 एटलीस्ट 5 टाइम्स. ओके, तुम लोग कुछ भी करो 5 बार, इतू सा क्वेश्चन, इतू सा, 5 times you have to write in your rough book, classwork book, homework book, wherever you want, on the newspaper, wherever you write, at least 5 times you write and you will never forget. जिंदगी भर करना ही है, अभी अगले मार्च तक यही करना है, तो करो 5 बार तो लिखो ये सवाल का जवाब, सवाल नहीं जवाब भी. ओके, लेट्स मूव. इन एन AP the 17th term is 7 more than the 10th term. So what are they saying? The 17th term is 7 more than
the seventh term. Okay, sorry, the 10th term. The 17th term is 7 more than the 10th term. Find the common difference. We have to find out D. बहुत इजी, देखो 17th टर्म, बस इसको टेक्निकली लिख रहे थोड़ा सा. ओके, 17th टर्म इज 7 मोर देन द 10th टर्म. क्या नहीं समझा यार तुमको? द 17th टर्म इज 7 मोर देन द 10th टर्म. सिंपल, करेक्ट, ये लिख दिया. व्हाट डू वी हैव टू फाइंड आउट? डी. ठीक है, हमको क्या पता है? फॉर्मूला. इसके पहले थोड़ा फॉर्मूला लिख लेंगे हम लोग. Tn is a plus n minus 1 d. फॉर्मूला लिख दिया. Therefore इसका Tn मतलब T17, तो क्या होगा? a plus 17 minus 1 d is equal to a plus 10 minus 1 d plus 7. इसको अच्छे से लिख देंगे. a plus क्या आएगा? 17d माइनस d. उससे अच्छा a प्लस 16d इज इक्वल टू a प्लस इधर कितना आएगा? 9d प्लस 7. करेक्ट. अभी इसमें a कट हो गया, दोनों साइड से चला गया. ये 9d इधर आएगा. 16d माइनस 9d इज इक्वल टू 7. ये कितना हुआ? 7d इज इक्वल टू 7. d इज इक्वल टू 1. मिल गया अपने को आंसर. कॉमन डिफरेंस इज 1. देखो कितना खुद सा सवाल है, 3 मार्क को आएगा बोर्ड एग्जाम को. ओनली दैट यू हैव टू बी वेरी अलर्ट. व्हाट जनरली यू आर डूइंग क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन 3 हो गया. वी नो द एक्सरसाइज एंड देन क्वेश्चन नंबर 10 को ऐसे टाइप के सवाल रह जाते. ओके, सो यू हैव टू डू पूरा अच्छे से पूरा एक्सरसाइज करो. ये सवाल 5 बार लिख के करो, कभी नहीं भूलोगे जिंदगी में. देखो कितना इजी. Okay, d is equal to 1. Okay, so in the next class we will see SN, some of the terms in an AP. तब तक के लिए खुश रहो. Enjoy the lockdown. Please be safe, stay safe, and have a nice time.